Hello students, I hope you all are fine and welcome back to EduTube. So my name is Rehan Ali Adit and I will upload a series of lectures and videos on management information system. As you people know, management information system is one of the subject of managerial level 1 in the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan. And you know the technicality and the complexity of this subject as it contains lots of content which is very critical, and it should be cleared. Concept should be clearly understood for the student if they want to crack the examination, because questions are asked in different aspects and perspectives, so that to tackle that question it become somehow difficult for the students. So for that purpose I am going to upload a series of videos, and it is going to be like a crash course. So if you are going to appear for your upcoming examination, then it will be a better place. It will be the best opportunity for you people to start your preparation from here. But before going towards that, let me allow to clearly define and clearly describe what I am going to teach you and how these crash course have been designed. First of all, this course it will contain all the terms and definitions that can be asked in examination. Along with it will contain MCQs. It will cover MCQs portion and descriptive portion, and I will also teach you and I will also tell you that how questions can be asked from ICMA Pakistan, and how you are expected to answer the questions that they have asked. And when they are asking questions, what kind of things they are expecting from you. Most of the students, they write the answer and they presume themselves that they have done perfectly, but there are some objectives behind that answer, and the examiner wants to see either the student is fulfilling the expectations or not. If the expectations are not fulfilled completely, then there is a possibility that marks could be reduced, or he could be failed, or he could be means, in examination that most of the student after having exam, they say that we have done perfectly, but when they see the result, they disappoint and they say that exam was not that much difficult, but the examination department have done some manipulation, or they say it was not fine. So that is why I have made this crash course, and inshallah I will try my best to complete whole syllabus of ICMA Pakistan within the period of it will be, I think, 10 to 12 hours course. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उर्दू में ही बोलना मैं पसंद करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उर्दू में ही समझ आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, और इसमें सबसे पहले हम क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स पे जो मुश्किल टॉपिक हैं उन पे हम ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे, और जो आसान टॉपिक्स हैं उनको हम जल्दी जल्दी मूव ऑन करेंगे। और इसके साथ चैप्टर के एंड पर हम MCQs भी करेंगे। उन पर मैंने वर्क किया है, एंड आई हैव एक्सट्रैक्टेड 100+ MCQs, एंड दैट MCQs आई विल सॉल्व एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर। सो हमारे पास ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स हैं, और इसके साथ हम जब 100+ MCQs करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली दे विल एक्सीड 1200 MCQs. So inshallah I will hope that once you will go through this course, it will be easy for you people to handle the course, और easily आप पेपर क्रैक कर सकेंगे। So without wasting time, चूँकि आज पहली क्लास थी, पहला लेक्चर था, तो इस वजह से मैंने आपको पहला इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आप क्लियर हो जाए इस कोर्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So first of all we have
ई बिज़नेस, व्हाट इज़ ई बिज़नेस। इससे पहले सॉरी फॉर दैट, मैं इंफॉर्मेशन या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करना भूल गया हूँ। तो सबसे पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। वन इज़ मैनेजमेंट, सेकंड वन इज़ इंफॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज़ सिस्टम। सो मैनेजमेंट, आपको मालूम है, मैनेजमेंट मीन्स टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स, टू कंडक्ट द थिंग्स इन एन अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर वे, राइट। सो अप्रोप्रिएट और प्रॉपर वे में कब होगा? जब चीज़ें प्लानिंग के मुताबिक होगी, जब चीज़ें अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस और अकॉर्डिंग टू रूल्स होंगी, जो कि पॉलिसीज़ को डिविएट नहीं कर रही होंगी, तो उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट कब सही होगी? जब वो इन्फॉर्म्ड होंगे, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस पे बेस्ड करेंगे, या क्या होंगे, या जब बेटर डिसीजंस होंगे, तो उस टाइम पे मैनेजमेंट अच्छी होगी। तो इसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लेट सपोज यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर स्टडीइंग इन इंटरमीडिएट, और आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है। अब आपके पास चॉइसेस है। आप CA भी परसीव कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं, ACCA कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो डू एनी अदर BS प्रोग्राम, और आप फ़ॉरेन कंट्री की तरफ मूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। अब आप क्या करते हैं? आप सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, आप अपने पास्ट को एनालाइज़ करते हैं कि मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ। आप अपने टीचर से कंसल्ट करते हैं कि आपको कौन सी डिग्री परसीव करनी चाहिए। तो उसके बाद आपको पता लगता है कि यू शुड चूज़ वन ऑफ द डिग्री और वन ऑफ द क्वालिफ़िकेशन। और वो कब मालूम होता है? जब आप अपनी पास्ट की इंफॉर्मेशन को रिवाइव करते हैं, आप पास्ट की इंफॉर्मेशन को रिवाइज़ करते हैं, तो जाके आपको पता चलता है। तो सेम इज़ द केस विथ ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास्ट डेटा को स्टोर करते हैं इन देयर डेटावेयर्स एंड डेटाबेस, और फिर उसके बाद जब उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन, जब उन्हें किसी डिसीजन के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, तो वो अपनी पास्ट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से रिट्राइव करते हैं और इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा या इंफॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होता है और सबसे महंगा एसेट होता है। अगर डेटा ही लॉस्ट हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस की ऑपरेशन टोटली स्टक हो जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी से शिफ्ट होकर लॉस की तरफ मूव होना शुरू होती है। तो इसलिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कलीदी किरदार अदा करता है फॉर दी प्रोडक्टिविटी, फॉर दी सक्सेस, फॉर दी प्रॉफिटेबिलिटी एंड फॉर दी इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन देयर ऑपरेशंस, राइट। सो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कैसे ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया है, इनोवेट किया है और ऑटोमेट किया है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे फर्दर जब हम चैप्टर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट, राइट। सो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है व्हाट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो अब मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द टर्म्स एंड डिफिनेशंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 1 इज़ ई बिज़नेस। व्हाट इज़ ई बिज़नेस? सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ बिज़नेस। बिज़नेस कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन हो रही हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो। सबसे पहले तो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, एंड देन प्रोडक्शन के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोडक्शन हो रही हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो, और उस डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन का मकसद प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करना है और प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसे हम बिज़नेस कहते हैं। अगर यही काम हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स एंड टेक्निक्स के ज़रिए की जाए, तो इसे हम ई बिज़नेस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस कहते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं डिफिनेशन में क्या लिखा है। बिज़नेस, सबसे पहले हमने बिज़नेस को डिफ़ाइन किया, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द एम टू अर्न प्रॉफिट, इसे हम बिज़नेस कहते हैं। इसके बाद हमने स्टडी किया व्हाट इज़ ई बिज़नेस। तो ई बिज़नेस, अगर हम वही काम
इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू की जाए करें, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू करें, मींस कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इंटरनेट के ज़रिए करें। जैसे कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलती रहती हैं और वहीं पर ही आप उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हासिल कर सकते हैं और आपके डोर तक उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पहुंचाया जाता है। तो इसे हम ई बिज़नेस कहते हैं। अब हम एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि ई बिज़नेस के क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरह के इम्पैक्ट्स डाले हैं इन करंट सिनेरियो, तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चीपर टू रन है। चीपर टू रन से मुराद ये है कि पहले जो प्रोसेसेस हो रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस में, अब उन प्रोसेसेस की कॉस्ट को रिड्यूस किया है। किस तरह से? जैसे कि मैंने चैप्टर के शुरू में बताया कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द इंफॉर्मेशन दैट द मैनेजमेंट हैव एंड दे टेक डिसीजंस ऑन द बेस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैनेजमेंट के पास तो इंफॉर्मेशन है, उनको पता है कि हर प्रोसेस पे या हर डिपार्टमेंट पे कितनी कॉस्ट लग रही है, तो वो हर वक्त इस तलाश में रहते हैं कि कैसे किसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे किसी प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है बाय इम्प्लीमेंटिंग ए टेक्नोलॉजी, और उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं दुनिया में कितने ऐसे प्रोसेसेस हैं जिन्होंने एम्प्लॉयज़ की नौकरियां खा ली है और उनके जगहों में सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ द एग्जांपल ऑफ ईमेल्स, राइट। एक टाइम होता था जब हम डाकिया क्या करता था, हमारे लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। आज भी हो रहा है थोड़ा बहुत काम इस पर, बट इट हैव बीन टोटली फिनिश्ड, राइट। सो आज आप देख रहे हैं कि ईमेल और दूसरे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स ने इन सर्विसेज को ख़त्म किया है और ऑर्गेनाइजेशन बहुत इफ़ेक्टिवली रन कर रहे हैं और अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस की है। तो इस तरह से ई बिज़नेस का क्या है, ये एक एडवांटेज है। बेटर इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोल। ओके, आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस पहले क्या करते थे, पेपर वर्क पे बहुत ज़्यादा काम करती थी। पेपर्स में या डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन को स्टोर की जाती थी और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता था। एंड व्हेन दैट पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते थे और एक्सट्रैक्ट करना भी एक स्लो प्रोसेस होता था, उनको ढूंढ कर निकालना। लेकिन आज इंटरनेट ने और इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस प्रोसेस को सिंप्लीफाइड किया है। इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना बहुत इजी हो चुका है। अब एक सर्च करने पर उसके रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ जाती है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस का, वो ग्लोबलाइजेशन है। यू नो कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजीज़ वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड, उस टाइम पर जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एरिया में ऑपरेट कर रही है तो वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर मोनोपोली कायम करता था और वो उसी एरिया के अंदर तमाम कस्टमर्स को ग्रैब करता था और उन तमाम कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करता था। लेकिन आज क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है ये इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस ने। और अगर कोई कंपनी जर्मनी में ऑपरेट कर रही है और उनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइस भी बहुत कम्पिटिटिव है, तो वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रहे हैं। लेट्स सपोज यू नो वन ऑफ द कार एंड इट इज़ लाइक करोला, ठीक है। एंड वो पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है और पूरी दुनिया में उसको डिमांड किया जाता है। लेकिन वो एक कंपनी एक मुल्क की होगी और उस मुल्क में उसके पार्ट्स बन रहे होंगे, उसके पार्ट्स असेंबल हो रहे होंगे और वो ही उसकी लॉयल्टी को पोजेस करते होंगे। लेकिन क्या है कि वो पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस ने ओवरऑल वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है और जियोग्राफिकल जो बाउंड्रीज़ होती थी उनको ख़त्म किया है। इसी तरह से आजकल यू नो कि हर यूज़र चाहता है कि उसके पास आईफ़ोन हो, तो आईफ़ोन भी किसी एक
मुल्क का प्रोडक्ट है और वो पूरी दुनिया में डिमांड किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी एंड द प्राइस ऑन विच दे आर ऑफरिंग टू द कस्टमर। सो जिसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की वजह से क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इनरिच किया गया है और बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट आ चुकी है। इसके अलावा क्विक एंड इजी कम्युनिकेशन, सो ये तो मैंने पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो चुका है। अब एक ही क्लिक करने पर कम्युनिकेशन या मैसेजेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक चले जाते हैं और हम इजीली घर बैठकर अपना दोस्त जो कि किसी फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है उनसे इजीली बात कर सकते हैं। प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, बहुत अच्छी सर्विसेज देता है कस्टमर के लिए। कस्टमर के पास भी अब बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं कि वो प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को कंपेयर करें विद अदर ब्रांड्स, अदर सिमिलर ब्रांड्स जो जिनकी उनको ज़रूरत है, और क्वालिटी को कंपेयर करें, प्राइसेस को कंपेयर करें और उनमें से जो बेस्ट है उसको चूज़ करें। तो इस तरह से कस्टमर्स के लिए भी बहुत अच्छी सर्विसेज पैदा हो चुकी है। सिंप्लीफाई बिज़नेस प्रोसेस, तो ये शुरू में मैं बता रहा था, बिज़नेस प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो गए हैं। अगर हम पास्ट में चले जाएं और पास्ट के प्रोसेसेस को हम अभी भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो इस टाइम के वर्ल्ड में हम शायद ज़िंदा ना रह सकें। लेट्स टॉक अबाउट ए कॉपलर, एक मोची जो कि एक टाइम पर जूते बनाकर भेजा करता था। अब अगर हम उसी मोची पर ही टोटली रिलाई करना शुरू करें, टोटली डिपेंडेंट हो जाए, तो इस दुनिया की आधी आवाम तो नंगी फिरेगी, ठीक है, नंगे पाँव फिरेगी। क्यों? बिकॉज एक मोची उस तरह से प्रोडक्शन नहीं कर सकता जिस तरह से आज बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस को इन्हांस किया जाता है और वहाँ पे ऑटोमेशन और रोबोटिक वर्क की वजह से क्या हो चुका है, बिज़नेस प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो चुके हैं और इस तरह से कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल करना बहुत इजी प्रोसेस बन चुका है। तो ये करंट सिनेरियो की नीड है, करंट सिनेरियो की रिक्वायरमेंट है। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल ना हो तो यकीनन इससे अनएम्प्लॉयमेंट केसेस भी पैदा होंगी और हमारी नीड्स भी पूरी नहीं होंगी। तो ये करंट सिनेरियोस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये इनोवेशन को प्रमोट करता है या इनकरेज करता है ई बिज़नेस से। असल में ई बिज़नेस ने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन पैदा किया है इस दुनिया में, बहुत बड़ा इनकलाब आया है। कि एक टाइम था व्हेन समवन इज़ गुड इन एनीथिंग, तो वो उसके पास ही रह जाती थी या एक लिमिटेड एरिया में लिमिटेड लोगों के दरमियान वो चीज़ शेयर होती थी। लेकिन आज अगर कोई अच्छी चीज़ इंटरनेट में शेयर करना चाहता है तो वो पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता है ईज़िली। सो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, लेकिन इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि ई बिज़नेस ने न सिर्फ एडवांटेजेस पैदा किए हैं बल्कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जो डिसएडवांटेजेस या इसके रिस्क कह सकते हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कंपटीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि पहले एक लिमिटेड एरिया के अंदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर रहा था, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ख़तरा हो चुका है कि अगर वो उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कम प्राइस पर और अच्छी क्वालिटी पर नहीं बेचेगा तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो कि कहीं पर भी लोकेटेड हो वो उन्हें क्या कर सकता है, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट शेयर को बहुत बड़ा लॉस पहुंचा सकते हैं और उनके कस्टमर को ग्रैब कर सकते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है ई बिज़नेस की वजह से। इसी तरह सिक्योरिटी के रिस्क जनरेट हो चुके हैं। मैंने कहा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द डेटा दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव एंड ऑन द बेस ऑफ दैट डेटा top management and executives of organization take important decisions, informed decisions, right? Long-term strategic decisions which have impact on their organization's profitability and productivity, efficiency, effectiveness. So
if the data is lost, if the data have some risk, then definitely they are in big loss. So सिक्योरिटी ने भी बहुत बड़े बड़े रिस्क पैदा किए हैं इंफॉर्मेशन के सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे रिस्क और वर्नरेबिलिटीज़ आज ऑर्गेनाइजेशंस फेस कर रही हैं। और हमने इंटरनेट में सुना भी होगा कि गूगल जैसे, फेसबुक जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के भी डेटा को साइबर अटैकर्स हैक कर लेते हैं और उनके सिस्टम के प्रोसेसेस को डाउन करते हैं, और गूगल जैसे कंपनीज़ भी बंद हो जाती हैं जिनकी सिक्योरिटी सिस्टम इतनी मजबूत हैं। और उनके लिए तो, उनकी सिक्योरिटी सिस्टम को तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिंपल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी साइबर अटैकर्स के सामने मजबूर हैं। तो इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक्स या साइबर वर्नरेबिलिटीज़ का भी रिस्क पैदा हो चुका है। इसी तरह अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले एक हैवी इन्वेस्टमेंट करनी होती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक रिस्क हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस तब तक ऑपरेट नहीं करेंगी जब तक वो टेक्नोलॉजी पर या इंटरनेट पर एक हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है ऑफ करंट सिनेरियोस। इसी तरह स्लो अडॉप्शन। अच्छा, स्लो अडॉप्शन यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि जब हमने टेक्नोलॉजीज़ को, इंटरनेट को और बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो इसके साथ साथ अब एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी पैदा हो गई। तो जब ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हो गई तो एम्प्लॉयज़ उस इन्वायरमेंट में डीमोटिवेट होना शुरू हो गए, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उनकी एडॉप्शन बहुत स्लो हो गई, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आएंगी, उन एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होगी और ट्रेनिंग के लिए उनको एडॉप्शन लाजमी है। तो ये एडॉप्शन भी स्लो हो गई है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे इन्वायरमेंट से तंग आ जाते हैं और तंग आकर लास्ट में क्या होता है, और वो एक तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालते हैं, और कुछ तो एम्प्लॉयज़ उस इन्वायरमेंट से तंग आकर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं। और इससे भी बड़ा जो रिस्क जो कि ई बिज़नेस ने इम्पोज किया है, इट इज़ अबाउट हैवी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। आज ऑर्गेनाइजेशंस टेक्नोलॉजीज़ पर और इंटरनेट पर टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं, और अगर इंटरनेट या टेक्नोलॉजीज़ थोड़ी देर के लिए भी ऑपरेट करना छोड़ दें तो उनके तमाम प्रोसेसेस, तमाम बिज़नेस एक्टिविटीज़ स्टॉप करेंगी। और इसकी एक मिसाल तो हम प्रीवियसली पाकिस्तान में ख़ुद देख चुके हैं कि जब फायर वॉल पाकिस्तान में लग रहा था तो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा था, और उससे मैं ख़ुद भी मुतासिर हुआ। वो इस तरह से कि मैं रिमोट एक्सेस पर ICMA पाकिस्तान के पेपर्स दे रहा था। तो जब मैंने पेपर दिया तो मैं पेपर में अपेयर नहीं हो सका, और पेपर देने से पहले ही क्या हो गया, वो पोर्टल डिसअपेयर हो गया और मैं एक्सेस नहीं कर पाया। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन से टोटली रिलाई हो गए हैं, उन पर टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं, और टेक्नोलॉजीज़ के बग़ैर उनका काम होना नामुमकिन है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 20-20 मिनट के वीडियोस अपलोड हों, तो आपकी अटेंशन भी रिटेन रहे और साथ में लर्निंग भी अच्छी हो। तो फिर अगली वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।